تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس بیان کو مکمل لازمی سنیں، بہت ہی پیارا بیان ہے۔ اگر آپ نے یہ بیان نہ سنا تو یوں سمجھے آپ نے کچھ بھی نہیں سنا۔ تبلیغی احباب، سارے احباب سے جو بھی اس بیان کے اوپر آئے ہیں ان سے لازمی درخواست ہے اس بیان کو لازمی سنیں۔ بہت اچھا بیان، بہت پیارا بیان اور بہت قیمتی باتیں ہیں۔ بیان کو لائک بھی کریں، کامنٹ بھی میں بتائیں کہ کیسا آپ کو لگا بیان، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بس میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت ہر ایک انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی انسان کو بھی اللہ پاک نے جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا، ہر ایک انسان کو اللہ پاک جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ علماء سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے انسان پیدا کیے اتنے ہی انسانوں کے لیے اللہ پاک نے جنت بھی بنائی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں جب بہت سے لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، بدقسمتی سے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ پاک اسی وقت جنت کا بہت سا حصہ خالی رہ جائے گا، تو اللہ پاک اسی وقت ایک مخلوق پیدا کر دیں گے جس کی وجہ سے جنت بھر جائے گی۔ تو اللہ پاک ہر ایک انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ماں نہیں دیکھنا چاہتی میرا بیٹا ناکام ہو جائے، ایک باپ نہیں دیکھنا چاہتا اپنے بیٹے کی ناکامی کو، ایک دوست کو ناکام ہونا دیکھنا نہیں چاہتا، ایک بھائی کو نہیں چاہتا۔ اتنے کریم اللہ، جس کے کرم کی انتہا نہیں، جس کی محبت کی انتہا نہیں، وہ اللہ جو کتنے محبت کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ قارون کے لیے جب اللہ پاک نے زمین موسیٰ علیہ السلام کے تابع کی، لمبا واقعہ اختصاراً عرض کر دیتا ہوں کہ زمین آپ کے تابع ہے، اے موسیٰ جو اس کو حکم دو زمین مانے گی۔ اللہ پاک کتنے کریم ہے، یہ زمین روز اللہ سے پوچھتی ہے، عرض کرتی ہے، جب اس کے اوپر گناہ ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک سے عرض کرتی ہے یہ زمین کہ یا اللہ میرے اوپر یہ آپ کی نافرمانی کرتا ہے، مجھے اجازت دے کہ اس کو نگل لو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میرا بندہ ہے تو میں اپنے بندے کا موت تک انتظار کروں گا کہ میری طرف لوٹ کے آئے گا، میں اس کو معاف کروں گا، اور اگر تو نے پیدا کیا تو جو کرنا چاہتے کر لے۔ اسی طرح آسمان جب اللہ کی نافرمانی دیکھتا ہے آسمان روتا ہے، سورج روتا ہے، اور یہ سمندر کی ہر موج اللہ پاک سے اجازت طلب کرتی ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے، یہ بندے میرے سامنے آپ کی نافرمانی کرتے، یا اللہ اجازت دے کہ ان کو اپنے اندر ہم لے لیں، ان کو غرق کر دے۔ یہ سونامی کیا ہے؟ کہتے فلانے ملک میں سونامی آیا اور فلانے ملک میں سونامی آیا۔ سونامی سمندر کے اندر ایک موج پہ قابو ہو گئی، وہ موج اٹھی اور پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا، بڑے مالدار ملک سیکنڈوں کے اندر کنگال بن گئے۔ ہر موج اللہ پاک سے اجازت لیتی۔ اللہ پاک فرماتے میں اپنے بندے کا موت تک انتظار کروں گا، میرا بندہ میری طرف لوٹ کے آئے گا، میں اپنے بندے کا انتظار کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا زمین آپ کے تابع ہے، جو قارون کے متعلق حکم دو یہ زمین عمل کرے گی، مانے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو فرمایا اس کو پکڑ، جب زمین نے پکڑا قارون کے پاؤں دھس گئے زمین میں، یعنی پاؤں، قارون سمجھ گیا، پھنس گیا۔ قارون چیخنے لگا، چلانے لگا، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، اے موسیٰ معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار یہی حکم دیتے رہے۔ آخر میں جب زمین کے اندر دھس گیا، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے کلیم، اے میرے موسیٰ، تیرا دل کتنا سخت تھا، تجھے پکارتا رہا، تجھ سے معافی مانگتا رہا، تو نے معاف نہ کیا۔ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، مجھ سے ایک مرتبہ معافی مانگتا میں اس کو معاف کر دیتا۔
अल्लाह पाक कितने करीम अल्लाह है, कितने रहीम अल्लाह है। उलमा से सुना है ये किरामन कातिबीन के एक दाएं कंधे पे फरिश्ता बैठा है। यह अल्लाह पाक का एक तकवीनी निज़ाम है जो नज़र नहीं आता। मौत के वक़्त पे ये दो की आंख जब बंद हो जाएगी ये सारा निज़ाम नज़र आ जाएगा। बाएं कंधे पे गुनाह लिखने वाला फरिश्ता, दाएं कंधे पे नेकियां लिखने वाले फरिश्ता। तो उलमा फरमाते हैं ये बाएं कंधे वाला मामूर है, दाएं कंधे वाला अमीर है। अमीर से पूछ के काम करता है। जब इंसान नेकी का इरादा करता है तो दाएं कंधे वाला फौरन इरादे पे एक नेकी लिख देता है। साथी कहते हैं इरादे पे नेकी मिलती है, नहीं, हर इरादे पे किधर नेकी मिलती है? गुनाह के इरादे पे तो नहीं, नेकी के इरादे पे नेकी मिलती है। और जब अमल कर लेता है तो अमल को इरादे पे फौरन नेकी लिख लेता है कि ऐसा ना हो इरादा तब्दील ना हो जाए। और फिर जब अमल कर लेता है तो 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा देता है। और बाज़ नेकियों पे तो अल्लाह पाक अजर अजीम देते हैं। अजर अजीम का सिवाय अल्लाह के किसी को पता नहीं। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, ये तबलीग वाले बड़े सादे हैं, 7 लाख की बात करते हैं, 49 करोड़ की बात करते हैं। हालांकि यह हदीस में है, इस तरह नहीं है कि माली इबादत 1 रुपए के बदले में 7 लाख गुना अल्लाह पाक बढ़ा देते हैं। और जानी इबादत जो है माली इबादत का 700 गुना बन जाती है। तो 700 ज़रबे 7 लाख 49 करोड़। लेकिन वो आलिम ने फरमाया वाकई तबलीग वाले तो सादे हैं, ये 49 करोड़ 7 लाख, हालांकि अल्लाह पाक तो इस काम पे अजर अजीम अता फरमा देते हैं। अजर अजीम फरमाते रेत के कितने ज़र्रे है ये तो कोई गिन सकता है, समंदर की कितनी झाक है, दरख्तों के कितने पत्ते हैं ये तो गिनती में आ सकती है। अजर अजीम सिवाय अल्लाह के किसी को पता नहीं कि कितना बड़ा अजर अल्लाह पाक अता फरमाता। तो वो फरिश्ता अमल पे फिर ये लिखता है। बाएं कंधे वाला फरिश्ता ये मामूर है, जब इरादा कर लेते हैं गुनाह का तो बाएं कंधे वाला अमीर साहब से पूछता है लिखूं? कहते नहीं अभी तो इरादा किया है, शायद इरादा बदल जाए, खैर है अभी ना लिखो। फिर जब कर लेता है कहते अब लिखो, यानी अभी ना लिखो, शायद तौबा कर ले, शायद माफी मांगे। जब तब्दीली का वक्त आ जाता है, फरिश्ते रात के फरिश्ते जाते हैं, दिन वाले आते हैं, दिन वाले जाते रात वाले। अब ये फरिश्ता अर्ज करते अब क्या करूं? कहते ठीक है लिखो, लेकिन हर गुनाह के बदले में 1 गुनाह लिखो, इससे ज्यादा ना लिखो। इतने करीम अल्लाह ये चाहते मेरे बंदे नाकाम हो जाए, बिल्कुल नहीं चाहते मेरे बंदे नाकाम हो जाए। लेकिन बंदे नाकाम होते क्यों है? जहाँ पे अल्लाह ने कामयाबी रखी है वहाँ पे ढूंढते नहीं है, जहाँ पे रखी नहीं है वहाँ पे ढूंढते फिरते हैं, वहाँ पे मिलती नहीं है। कामयाबी मुल्क के मिल जाने का नाम कामयाबी नहीं, माल के मिल जाने का नाम कामयाबी नहीं, गाड़ियों के मिल जाने का नाम कामयाबी नहीं, बल्कि अल्लाह पाक फरमाते हैं व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर व ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह पाक का राज़ी होना ये बड़ी कामयाबी है। और फरमाया व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह पाक का राज़ी होना बहुत बड़ी बात है। व ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह पाक का मिल जाना, जिसको अल्लाह मिला इसको सब कुछ मिला। और अल्लाह पाक मिलते हैं दीन के रास्ते से, बेदीनी के रास्ते से कभी भी अल्लाह पाक नहीं मिलते। और दीन क्या है? आसान सा, हमारे हजरत आसान सी बात करते हैं कि हर काम में अल्लाह पाक का हुक्म टूटने न पाए, नबी का तरीका छूटने न पाए, ये दीन है। जिस काम में तुम लगे हो, जिस शुगल में लगे हो, जिस जगह लगे हो, वहां पे देखो कि अल्लाह का हुक्म टूटने न पाए, नबी का तरीका छूटने न पाए, बस तुम इस अमल में कामयाब हो। अंबिया अलैहिस्सलाम इस दीन की मेहनत करते थे, इस दीन की बरकत से फरमाते नतीजे की जगह दुनिया नहीं है। किसी को धोखा लग जाए कि दुनिया नतीजे की जगह नहीं है, दुनिया तो अमल का मैदान है, नतीजे की जगह तो आखिरत है। और आखिरत में
फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़, जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में पहुंचा दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, यही कामयाब है। जब क़यामत के दिन नतीजा आएगा तो फरमाया जिसको जन्नत की एंट्री मिल गई, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, तो ये आदमी क्या नारा लगाएगा? जिसको दाएं हाथ का अमलनामा मिला वो कहेगा हाउ मुक़रउ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया। कहते जिसको दाएं हाथ में अमलनामा मिला ये नारा लगाएगा, जैसे हम खुशी में नारा लगाते ये भी एक नारा लगाएगा, इक़रउ किताबिया, कहेगा मेरा अमलनामा पढ़ ले, मुझे जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, मैं तैयारी करने वाला था, मुझे यकीन था कि मैंने हिसाब देना है, इस दिन के लिए मैंने तैयारी की थी, आज मेरा अमलनामा देख ले, मुझे कामयाबी का सर्टिफिकेट मिल गया, मैं पास हो गया। कामयाबी तो जन्नत में मिलेगी, लेकिन दुनिया में फरमाते दुनिया तो नतीजे की जगह नहीं है, लेकिन इस दीन की बरकतें, फरमाया इस दीन की बरकत से दुनिया में अल्लाह पाक हयातन तय्यबा नसीब करते हैं। नतीजा तो वहाँ पे मिलेगा, तुम्हारा जान माल तो जन्नत के बदले में खरीदा जा चुका है, तो जो अमल करता है इसका रिजल्ट तो जन्नत की शक्ल में तुम्हें मिलेगा, लेकिन इस जिंदगी की बरकतें दुनिया में भी अल्लाह पाक हयातन तय्यबा नसीब कर देते हैं। ये ऐसे है जैसे आम मिसाल से बात समझ आती है। बस होटलों में होता है, कहते कि सालन ले लो रोटी फ्री में मिल जाएगी, सालन की कीमत दे दो रोटी तुम्हें फ्री में मिल जाएगी। अब अगर कोई कहे कि खैर मैं सालन नहीं लेता रोटी फ्री में दे दो, तो वो कहेंगे ऐसे के लिए हमारा होटल नहीं, वहाँ पे पागल खाना है। ऐसा कोई नहीं है कि ये तो सालन के साथ हम रोटी फ्री देते हैं, सालन कोई न ले उसको न सालन मिलेगा न रोटी मिलेगी। इसी तरह कोई चाहे कि दीन की वजह से ठीक है मैं जन्नत नहीं चाहता, बस दुनिया की जिंदगी बन जाए, सब कुछ के होते हुए परेशान हो जाएगा। हयातन तय्यबा, फरमाते हयातन तय्यबा चीज़ों के मिलने का नाम नहीं है, माल के मिलने का नाम नहीं है, गाड़ियों के मिलने का नाम नहीं है, ये चंद हालात है जिसको अल्लाह पाक इंसान के रूह पे उतारते हैं, और जब वो हाल आ जाता है तो पता चलता है ये आदमी कामयाब है। सबसे पहला हाल यह है कि दीन वाला आदमी पुरसुकून हो जाता है। ये सुकून खुदा की कसम सारे दुनिया का माल किसी को मिल जाए, सुकून को ये नहीं खरीद सकता। बल्कि पिछले 100 साल में दुनिया के मालदार तरीन 100 आदमी जो मरे हैं उन पे तहकीक हो गई कि ये किस वजह से मरे हैं। 3 बातों के अलावा कोई बात उनकी और सामने नहीं आई। या तो उनको डिप्रेशन की वजह से मरे, या खुदकुशी की वजह से मरे, या उन्होंने इतने परेशानियों में इतने ड्रग्स मनशियात इस्तेमाल किए जिसकी वजह से मर गए। इसके अलावा कोई वजह नहीं है। अल्लाह पाक दीन की बरकत से सुकून देते हैं, और दीन की बरकत से अल्लाह पाक इज्जत देते हैं। दीनदार लोगों को अल्लाह पाक इनके नामों में भी इज्जत रखते हैं। सबसे ज्यादा इज्जत वाले इंसान, सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम भी लो तो उनको इज्जत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ उन पर पढ़ो। उसके बाद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके साथ भी इज्जत के साथ नाम लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु, रज़ियल्लाहु अन्हा, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैह। किसी बादशाह के साथ भी आता है, कभी अकबर, कभी शाहजहां, हुमायूं। हाँ, जिस बादशाह की भी जिंदगी में दीन था, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिसके बारे में आता है एक मरतबा एक आदमी आया उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के बाद खलीफा थे यजीद बिन अब्दुल मलिक। यजीद बिन अब्दुल मलिक के पास एक आदमी आया, कहा कि एक ज़मीन थी, मुझे आपके वालिद अब्दुल मलिक ने भी दी थी, फिर वलीद ने भी मुझे वो ज़मीन दी, फिर सुलेमान ने भी वो ज़मीन मुझे दी, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आए, उन्होंने मुझसे वो ज़मीन वापस ले ली।
अब आप आ गए, मुझे ये ज़मीन दे दे जो मुझे आपके वालिद ने दी थी, आपके बड़े भाइयों ने दी थी। कहा दोबारा तू ये बात दोहरा दे, किस तरह हुआ? कहा एक ज़मीन का टुकड़ा था, ये मुझे अब्दुल मलिक ने भी दिया था, फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने भी दी, फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने भी दी, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे वापस ले ली। अब कहा जालिम इंसान, जिन्होंने तुझे ज़मीन दी तो उनके नाम ऐसे लेते हैं, अब्दुल मलिक और वलीद और सुलेमान, और जिसने तुझसे ली उसको तो रहमतुल्लाह अलैह दुआ देता है। कहा मैं भी तुम्हें नहीं देता। मेरे भाई दोस्तों, ये इज्जत है, मरने के बाद भी इज्जत अल्लाह पाक देते हैं। उनके नामों में भी, उनके जगहों में भी इज्जत। जिन जगहों पे वो रहते थे, अजमेर शरीफ यानी अजमेर शरीफ, कहा कि यहाँ पे एक शरीफ इंसान गुजरा, उस जगह का नाम भी मुअज़्ज़ज़ बन जाता है। अल्लाह पाक सुकून देते हैं, अल्लाह पाक राहत देते हैं, अल्लाह पाक इज्जत देते हैं, अल्लाह पाक महबूबियत देते, अमूमी महबूबियत देते हैं। अल्लाह पाक जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इल्का करते कि मैं इस फलाने बंदे से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह की मोहब्बत की वजह से जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करते हैं, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमानों में ऐलान करते जिसकी वजह से आसमानों के फरिश्ते इस इंसान से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर ज़मीन के लोगों में ऐलान हो जाते तो मोहब्बत अमूमी, सारे लोग उससे मोहब्बत करने शुरू कर देते। महबूबियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देते, दीन की बरकत से ये सब कुछ मिलता है। बेदीनी पे बल्कि पूरे कुरान के वाक़यात का निचोड़ खुलासा किया है कि बेदीन आदमी को नमरूद की हुकूमत दे दो, फ़िरौन की सल्तनत दे दो, कारून के ख़जाने दे दो, को में सबा के बागात दे दो, को में शुएब की मंडियाँ दे दो, को में समूद की सनत व हरफत दे दो, को में नूह की अक्सरियत दे दो, को में आद की ताकत दे दो, बेदीन इंसान फिर भी नाकाम है। और दीनदार इंसान अगर उसकी गर्दन इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह छुरी के नीचे आ जाए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह कोई आग के अंदर उसको डाल दे, और दीनदार इंसान यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह कोई कुएं में फेंक दे, या दीनदार इंसान यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह जेल में चला जाए, या दीनदार इंसान अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह करंटीना में चला जाए। हमारे तो 15 दिन के करंटीना से साथी डरते थे, वो करंटीना में डालते। अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल करंटीना में रहे, सिर्फ बीवी पास थी, बाकी करंटाइन। दीनदार इंसान ऐसे बीमारी में, या दीनदार इंसान सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह तख्त के ऊपर बैठ जाए। दीनदार इंसान हर हाल के अंदर कामयाब है, और बेदीन इंसान हर हाल के अंदर नाकाम है। बल्कि फरमाते बेदीन इंसान सुकून ढूंढना चाहे, राहत ढूंढना चाहे, इज्जत ढूंढना चाहे, जिंदगी की बरकत ढूंढना चाहे, कहते ये ऐसा है जैसे कोई मछली को पानी से बाहर निकाले और वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दे, उसको वजीर आजम की कुर्सी पर रख दे कि यहाँ पे मछली खुश हो जाएगी, मजा उसको आएगा कि वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ गई। क्या ख्याल है, खुश होगी, तड़पेगी। फिर अगला वो उसको कह दे यहाँ पे तो ये खफा है, वज़ीर आज़म की कुर्सी मामूली है, इसको बादशाह के बेड पे पहुंचा दो, बादशाह के कमरे में पहुंचा दो। बादशाह के बेड पे भी ये तड़पेगी या खुश होगी, तड़प तड़प के मर जाएगी। जब तक इसको पानी ना मिले इसको सुकून नहीं मिलेगा। इसी तरह ये इंसान तड़प तड़प के मर जाएगा जब तक जिंदगी में दीन नहीं है, खुदा की कसम सुकून नहीं है, खुदा की कसम चैन नहीं है, खुदा की कसम इज्जत नहीं है। और दीन जिंदगियों में आता है, दीन और मेहनत है, ये नबियों वाली मेहनत, अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत। और अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत में बुनियादी मेहनत फरमाया, दावत की मेहनत। फरमाते नबियों की मेहनत के 2 मरहले हैं। पहले मरहले में अंबिया अलैहिस्सलाम ऐसे माशरे में ऐसे लोगों के पास आए जो दीन से बेजार लोग थे, दीन नहीं चाहते थे। और दीन हर एक इंसान की जरूरत है, दीन मानने वालों की भी जरूरत है, दीन न मानने वालों की भी जरूरत है, बल्कि फरमाते दीन के मिटाने वालों की भी दीन की जरूरत है। ये नहीं है ना समझ है, नादान है, ये नहीं है कि एक आदमी दीन को मिटा रहा है, इसको जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत इस दीन के
फैलाने वाले की, इस दीन पे चलने वाला जो चल रहा है, जितनी ज़रूरत इसको है इतनी ज़रूरत इस दीन के मिटाने वालों की भी है। लेकिन पागल है, दीवाना है, इसको पता नहीं चल रहा। तो अंबिया अलैहिस्सलाम दीन से बेजार लोगों में और दीन से भागने वाले लोगों में आते थे। पहला मरहला यह होता था, दावत के जरिए बेतलब लोगों में तलब पैदा करते थे। एक एक के पास जाते थे दावत की मेहनत करके, फरमाया एक एक को, और दावत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बुलाना कि अल्लाह पाक जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, पूरे कायनात के चलाने वाले हैं, अल्लाह के अलावा कोई इस कायनात को चला नहीं सकता। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान के अंदर, मफ़हूम है कि अगर मैं क़यामत तक तुम्हारे ऊपर रात ले आऊं तो कोई है जो इस रात को दिन में तब्दील कर दे, और क़यामत तक अगर तुम्हारे ऊपर मैं दिन लेके आ जाऊं तो कोई है जो इसको रात में तब्दील कर दे। और अल्लाह पाक फरमाते अगर मैं तुम्हारा पानी नीचे कर दूं तो कोई है, कोई ज़ात है मेरे अलावा जो इस पानी को ऊपर ले आए। इस्लामाबाद में एक बड़ी सोसाइटी थी, बड़े खूबसूरत घर थे, उस सोसाइटी की कीमत कई गुना गिर गई। किस वजह से? कहा यहाँ पे पानी नीचे चला गया, अब इस पानी को कोई ऊपर ले आ सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास गए, अंबिया ने दावत की मेहनत, दावत के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ाई बयान करके अल्लाह पाक की तरफ बुलाया। बेतलबों में गए, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गए, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास गए। नमरूद ने पूछा तेरा रब क्या करता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद नादान था, बेवकूफ था, जाहिल था। नमरूद ने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। एक बेगुनाह आदमी को फांसी पे, सूली पे चढ़ाया, एक गुनाहगार आदमी जिस पे सजाए मौत का हुक्म था उसको आज़ाद कर दिया, मैंने भी कर दिया। तो अंबिया अलैहिस्सलाम दाई की ये भी सिफत है, ये वो किसी उलझता नहीं है, उलझता नहीं है, अपने काम के रास्ते निकालता है, अपना काम करता है। हाजी अब्दुल वहाब साहब फरमा रहे थे रहमतुल्लाह अलैह कि एक मरतबा मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ हम तश्कील में थे, तो एक साथी के साथ मैं बात कर रहा था, थोड़ी देर लगा दी, कहा अब्दुल वहाब आगे बढ़ो, काम बाकी है। दाई उलझता नहीं है, आगे बढ़ता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है। तू जाके इस तरह कर ले कि इसको मगरिब से तुलू कर दे, मशरिक में गुरूब कर दे। फबुहित अल्लज़ी कफ़र, वो मफहूत हो गया, सटपटा गया, उसको कुछ जवाब दे ही नहीं सका। उलमा फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक को अपने खलील की बात की इतनी लाज कि अल्लाह पाक उस वक्त तक क़यामत को कायम नहीं करेंगे जब तक अपने खलील की बात को पूरा न कर ले कि एक मर्तबा आएगा कि इस सूरज को अल्लाह पाक मगरिब से निकालेगा, और फिर जब 12 बजे का टाइम हो दोबारा उधर गुरूब हो जाएगा। इस बात को इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने खलील की बात को पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसके बाद फिर किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। इस कायनात के चलाने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, इस कायनात के बनाने वाले बदी। फरमाया एक है खालिक। खालिक तो उलमा फरमाते कि वो जो कोई नक्शा मौजूद हो, कोई मटेरियल मौजूद हो, वो चीज़ बनाए। बदी कोई चीज़ वजूद ही नहीं है, उसका नक्शा नहीं है, डिज़ाइन नहीं है, मटेरियल नहीं है। बगैर नक्शे के, बगैर डिज़ाइन के, बगैर मटेरियल के अल्लाह पाक अदम से वजूद दे दे। अल्लाह पाक ऐसे वजूद देने वाले और ऐसे कंट्रोल करने वाले। सूरज कितने अरब साल हो गए चल रहा है सूरज का निज़ाम, कभी इसके स्पीड में कमी आई, कभी रोशनी में कमी आई, कभी सूरज की तमाज़त में कमी आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात को चलाने वाले हैं, इस कायनात के बनाने वाले, और इस कायनात पे कब्ज़ो कंट्रोल भी अल्लाह पाक का है। ये नहीं हम में से कोई चीज़ बनाता है, कोई बंदूक बनाता है तो वो बंदूक
बनाने वाले के कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल उसी का है जिसके हाथ में आपने दे दी, बनाने वाले पे वो गोली चलाओ तो उसको भी गोली लगेगी, उसके कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल जिसके हाथ में है अल्लाह रब्बुल इज्जत, इस कायनात के बनाने वाले, इसके चलाने वाले और इसके काबू करने वाले, और कब्ज़ और कंट्रोल भी अल्लाह पाक का है। और ऐसा कब्ज़ और कंट्रोल कि दरख्त का एक पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह से पूछ के गिरता है, कितनी कलाबाजियां का के गिरे, उल्टा गिरे, सीधा गिरे, ये अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं। हवा आती है, तूफान आते, हैदराबाद थल का सहरा देख ले, दुनिया के कितने बड़े बड़े सहरा, सहराए गोभी में कितने रेत के जर्रात उड़े, ये अल्लाह के हुक्म से उड़े, एक जर्रा भी अल्लाह के हुक्म के बगैर उड़ नहीं सकता। ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत, ऐसे खबीर, ऐसे अलीम, काली रात के अंधेरे में काली चट्टान के ऊपर एक काली चूंटी जा रही है, अल्लाह पाक उस चूंटी के पांव से बनने वाले लकीर को भी देखते हैं, और ऐसे सुनने वाले उसके पांव की आहट को सुनते हैं, और ऐसे जानने वाले उसके दिल के ख्यालात से भी वाकिफ है। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, मा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा आपके दाएं हाथ में क्या है? उलमा फरमाते, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, वो अल्लाह जो काली रात के अंधेरे में काली चट्टान के ऊपर एक काली चूंटी के पांव से बनने वाली लकीर को देखते हैं, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के दाएं हाथ में आसा नहीं देख रहे थे। फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को मुतवज्जे करने के लिए कि मूसा अलैहिस्सलाम देख ले कि इसको ये शक न गुजरे कि जब फेंकेगा और असा से सांप बनेगा, तो बाज़ मरतबा आदमी को शक होते कि शायद मैंने असा की जगह पे सांप उठाया था, तो ये शक न गुजरे। जैसे हम कहते हैं ना, देखो देखो आपके हाथ में क्या है, उसको मुतवज्जे करने के लिए कि ख्याल रखो आप क्या। इस तरह अल्लाह पाक ने फरमाते मूसा अलैहिस्सलाम को, ए मूसा आपके हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने तो उसके नफे गिनवाए, या अल्लाह ये तो मेरा असा है, या अल्लाह इससे मैं पत्ते झाड़ता हूँ, टेक लगाता हूँ, और इसमें तो बहुत नफे की चीजें हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मुफस्सिरीन फरमाते पहले देखा, यकीन कर लिया कि वाकई ऐसा है, कोई और चीज नहीं है, ऐसा ना मैंने गलत चीज सुनी उठाई, नहीं नहीं, रात का अंधेरा था, चूंकि अंधेरे में आग लेने के लिए आए थे, तो देखा कि वो अपना असा है, असा उठाए, फिर अल्लाह पाक को उसके नफे गिने, कहा इसको फेंक दे। जब फेंका 100% नफे की चीज को 100% नुकसान वाला बना दिया। और फरमाते सांप ऐसे सांप नहीं था, सांप 3 किस्म के सांप होते, अरबी में हर सांप का अपना नाम है, और उन तीनों सांपों के सारे नाम कुरान में मौजूद है मुख्तलिफ जगहों पे। एक सांप वो होता है जो फुर्तीला बहुत होता है, तो रफ्तार बहुत तेज होती है, लेकिन जहर इतना तेज नहीं होता, उसका साइज इतना बड़ा नहीं होता, इसका अलग नाम है। एक सांप वो होता है रफ्तार इतनी तेज नहीं होती, लेकिन जहर बड़ा तेज होता है, इसका अलग नाम है। एक सांप अजदहा होता है, जो इसमें जहर नहीं होता, इतना रफ्तार भी नहीं होती, लेकिन बड़े बड़े ऊंट कहा जाता है अजदहा, इसका अलग नाम। कहा मूसा अलैहिस्सलाम के सांप में तीनों खूबियां जमा थी, रफ्तार भी बहुत तेज थी और जहर भी बड़ा तेज था, और यानी अंदाजा लगा ले कितना बड़ा सांप होगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब वो जादूगर इकट्ठे हुए, 40,000 जादूगर, एक जबड़े से कहते एक तरफ पे एक जबड़ा था सांप पे, दूसरा जबड़ा फिरौन के महल के ऊपर था। ऐसा अगर हुक्म होता फिरौन के महल को भी निगल लेता, इतना बड़ा सांप था इसका। अब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते भाग गए। ये खौफ जो है, खौफ ये तभी चीज है, फितरी चीज है, ये यकीन के मुनाफी नहीं है, इंसान की फितरत में है। हाँ, खौफ इतना गालिब ना हो कि अल्लाह के हुक्म पे गालिब आ जाए, ये खौफ ये सही नहीं है, ये मज़मूम है। इतना खौफ हो फाके का, इतना खौफ हो किसी चीज का कि इंसान अल्लाह के हुक्मों को तोड़ दे, ये मज़मूम है। अब फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम अब भागे, और फरमाते ऐसे भागे कि पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरी रफ्तार कम ना हो जाए।
اب یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، فرماتے ایک ہے خوف، ایک ہے حزن۔ اپنی جان پہ ہو تو اس کو خوف بولتے، دوسرے کی فکر ہو تو اس کو حزن بولتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں اپنا خوف نہیں تھا، اپنا جان تو نچھاور کرنے کو تیار تھے، اپنا جان تو لگانے کو تیار تھے، بلکہ فرماتے جان لگانے میں تو صدیق اکبر جبرائیل علیہ السلام سے بھی آگے بڑھ گئے۔ کہتے معراج کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے وہ سدرۃ المنتہا پہ عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک بال برابر یہاں سے آگے بڑھتا ہوں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ رک گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، فرماتے یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے رک گئے، لیکن صدیق اکبر کسی مرحلے پہ اپنی جان کے خوف سے نہیں رکے۔ تو وہاں پہ اپنی پرواہ نہیں تھی، اس لیے یہ نہیں فرمایا لا تخف لا تحزن، اے صدیق میرا غم نہ کر، میرا بھی غم نہ کر، اور اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، نہ مجھے کچھ ہوگا نہ آپ کو کچھ ہوگا۔ ایسے جان لگانے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی وہ تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، اللہ کا حکم آیا، فرماتے سارا خوف اطمینان میں بدل گیا، رک گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کو پکڑ۔ اب غالباً تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اپنے ہاتھ پہ رومال باندھا اور دم سے پکڑنے لگے، فرمایا رومال بھی ہٹا دے، اور سب سے خطرناک جگہ سام کی کیا ہے، منہ کے راستے سے، وہاں سے پکڑو۔ کہتے جیسے منہ کو ہاتھ لگایا، نقصان کی چیز کو اللہ پاک نے نفع والا بنا دیا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی طاقت، یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت۔ اور نشانیاں دیکھے، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا، تو علماء فرماتے موسیٰ علیہ السلام کو بیوی تھی، بچے جننے کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، تو دل میں تو خیال آتا ہے، انسان ہے، تو اللہ پاک نے ان کو فرمایا، اللہ پاک تو دلوں کے بھید جانتے، اے موسیٰ وہاں پہ ایک پتھر پڑا تھا، کہا اس کے اوپر عصا مارے، عصا مارا، دوسرا پتھر نکلا، اس کے اوپر عصا مارا، تیسرا پتھر نکلا، اس کے اوپر مارا تو اس میں ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا تھا، اور کہا کہ کان لگا کے سنو کیا کہہ رہے، وہ کہہ رہا تھا سبحان من یرانی یعرف مکانی یسمع کلامی یرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، میرے مکان سے واقف ہے، مجھے کھلا رہی ہے، مجھے بھولتی نہیں ہے۔ ایسے اللہ رب العزت ہے، نفع کی چیز کو نقصان میں تبدیل کر دے، نقصان کی چیز کو نفع میں تبدیل کر دے، اللہ پاک اس پہ قادر ہے۔ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کہتے 2 خواب اور 2 قمیص۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے خواب اچھی تعبیر کا خواب دیکھا ہے، لیکن وہ خواب یوسف علیہ السلام کے لیے پریشانیوں کا سبب بنا۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، غلامی میں چلے گئے، پردیس میں چلے گئے، والد سے جدا ہو گئے، جیل میں چلے گئے، اور یوسف کی قمیص گھر میں آئی، غموں کو لے کے آئی، والد کی بینائی چلی گئی۔ یہ تو اللہ پاک، حالات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کے قسم اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں ایک ذرے کا حال نہیں ہے۔ یہ تو حالات میں گھبرانا نہیں، حالات تو آتے، وہ ایک شعر ہے کہتے تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ حالات تو اللہ پاک فرمایا، یہ تو اللہ پاک چیک کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے، حالات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک نفع کے حال میں نقصان دے دے، نقصان کے حال میں نفع دے دے، اللہ پاک اس پہ قادر ہے۔ اب یوسف علیہ السلام دوسرا خواب، ظاہر میں تعبیر اس کی اچھی نہیں ہے، قحط آئے گا، 7 سال بارش نہیں ہوگی، قحط سالی ہوگی، یہ ہوگا، لیکن اس خواب کی برکت سے یوسف علیہ السلام جیل سے نکل گئے اور تخت کے اوپر اللہ پاک نے بٹھا دیا، اور قمیص دوسری، وہی یوسف کی قمیص، دوسری قمیص گھر میں آئی، خوشیاں لے کے آ گئی، اور یوسف علیہ السلام کی بینائی آ گئی۔ تو حالات سے جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک مرتبہ پیٹ میں درد تھا تو ایک درخت کے پتے کھائے، اللہ پاک نے فرمایا اس درخت کے پتے کھاؤ، پتے کھائے تو درد ٹھیک ہو گیا، اگلی مرتبہ پھر درد ہو گیا
तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने देख लिया कि इस के पत्ते मैंने खाए थे, मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया, अभी बगैर पूछे खाए तो पेट का दर्द ठीक ना हुआ। तो अल्लाह पाक से अर्ज किया, अल्लाह पाक ने फरमाया पेट का दर्द तो पत्तों से ठीक नहीं होता, ये तो मेरे हुक्म से ठीक होता है। मैं हुक्म दूंगा तो ठीक होगा, न दूंगा तो ठीक कौन कर सकता है। तो मेरे भाई दोस्तों, जिंदगी बनाते अल्लाह है, जिंदगी जिसकी बिगाड़ने पे अल्लाह आ जाए, खुदा की कसम कोई उसकी जिंदगी बना नहीं सकता। ला यइज़्ज़ु मन अदैत वला यज़िल्लु मन वलैत। या अल्लाह आप जिसके दुश्मन बन जाए उसको कोई इज्जत नहीं दे सकता, जिसके आप दोस्त बन जाए उसको कोई जलील नहीं कर सकता। और अल्लाह पाक जिंदगी बनाते किस पे है। मौलाना तोंसवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ईमान वालों खुश हो जाओ, ईमान वालों के साथ अल्लाह की यारी है। अल्लाह वलीउल मुमिनीन, अल्लाह ईमान वालों का यार है। लेकिन इस यारी की एक शर्त है, अल्लाह पाक की यारी किसके साथ है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मैं उसका यार जो मेरे नबी का यार, जो मेरे नबी का यार नहीं है उसके साथ अल्लाह की यारी नहीं है। हम हर नमाज के हर रकत में मांगते, या अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। या अल्लाह मुझे इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता दिखा, वो रास्ता दिखा जिस पे चल के मैं इनाम याफ्ता लोगों में शामिल हो जाऊं। हर नमाज के हर रकत में मांगते हैं। लेकिन जब वो रास्ता दिखाया जाता है, अल्लाह पाक ने कुरान में वो रास्ता दिखाया है, मय्युतिल्लाह व रसूलहु फउलाइका मल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। कि जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पे अल्लाह पाक ने इनाम किया है। वो अंबिया है, वो सिद्दीकीन है, वो शुहदा है, वो सालिहीन है। और क्या बेहतरीन है उनकी यारी, उनकी रफाकत, उनका रफीक बनना। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन वो रास्ता दिखाया जाता है तो हम उस रास्ते पे चलने को तैयार नहीं है। फिर उस किन से रास्ते पे चलते, हम रिवाज पे चलते हैं, हम मिजाज पे चलते हैं, हम अपनी तबीयत पे चलते हैं। फरमाते हैं अपनी जी की माननी ये तबीयत है और नबी जी की माननी ये शरीयत है। हमने अपनी जी की नहीं माननी, हमने नबी जी की माननी है। हमने तबीयत पे नहीं चलना, हमने शरीयत पे चलना है। और फरमाते हैं कि इस इम्तिहान में, दुनिया दारुल इम्तिहान, इस इम्तिहान में वो पास जो नबी जी के पास, जो नबी जी से दूर वो तो फेल है, नाकाम है, वो तो नाकाम लोग है। अब आप बता दे, एक बच्चा इम्तिहान में फेल हो रहा है, दूसरा बच्चा फेल बच्चे की नकल उतारे। फेल की नकल उतारने वाला पास हो सकता है, फेल की नकल उतारने वाला भी फेल है। तो अगर फेल की नकल उतारने वाला फेल है, तो अगर काफिर फेल है तो उनकी नकल उतारने से हम कैसे पास हो जाएंगे। आज हमारा लिबास में, मईशत में, माशरत में, सियासत में, इबादत में, लिबास में, यानी खालिस इबादत में। देखे 9 मुहर्रम का रोज़ा, 10 मुहर्रम का रोज़ा ये यहूद रखते थे कि 10 मुहर्रम को फ़िरौन गर्क हो गया था, बनी इसराइल को अल्लाह पाक ने निजात दी थी। और भी बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। 10 मुहर्रम को उलमा से सुने कि क़यामत भी 10 मुहर्रम को कायम होगी। तो यहूद एक रोज़ा रखते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हमारा ज़्यादा ताल्लुक़ है, और रोज़ा रखा और फरमाया अगले साल में ज़िंदा रहा तो यहूद एक रखते। उनकी मुखालफत खालिस इबादत में भी, जो सिर्फ तादाद की एक मुशाबहत की एक सूरत बन रही थी, ये भी अल्लाह के नबी को पसंद नहीं। फरमाया मैं अगले साल जिंदा रहा तो ये एक रखते, मैं 2 रखूंगा कि इनके साथ इतनी भी मुशाबहत ना हो। ये अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु, ये यहूदियों के बड़े आलिम थे। ये जब मुसलमान हो गए, यहूदियों के बड़े आलिम थे, तो इन्होंने सोचा यहूदी ऊंट का गोश्त नहीं खाते, तो सोचा मैं यहूदियत मज़हब में भी जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन पे भी अमल करूँगा
और इस्लाम की बातें भी नहीं छोड़ूंगा, उसको भी, इस्लाम की बातों को भी। जैसे यहूदियों में हफ्ते का दिन उसकी वो काबिल एहतराम दिन है, तो कहा मैं जुम्मे के दिन भी इबादत करूंगा, हफ्ते के भी दिन भी इबादत करूंगा, 2 दिन कर लूंगा इबादत। बाकी गोश्त खाऊंगा, ऊंट का गोश्त नहीं खाऊंगा कि वो जो मैं यहूदियत में मेरी बातें थी उस पर भी अमल हो। ये चर्बी नहीं खाते जानवरों की जो हड्डी में मिले हो या और, तो कहा मैं चर्बी नहीं खाऊंगा। बाकी चीजें अल्लाह पाक ने वही उतारी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ ईमान वालों। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के रास्ते की पैरवी न करो। फरमाते खालिस इबादत की नीयत है, इसको शैतान की पैरवी। जब मैं कारोबार में, मईशत में, माशरत में, लिबास में, सियासत में इनकी पैरवी करूंगा, मैं क्या कर रहा हूं। आज अल्लाह माफ फरमाए, आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिंदगी लेके आए, इस जिंदगी पे जिंदगी गुजारना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा, हर हाल में इत्तिबा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी सख्त अमर पेश आता फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जो होते। और पिछले अंबिया का भी यही दस्तूर था। नमाज अल्लाह पाक के हुक्मों में, जैसे मैंने अर्ज किया, जिस काम में भी लगो ये देखो कि अल्लाह का हुक्म टूटने ना पाए, नबी का तरीका छूटने ना पाए, तो तू दीन पे चल रहे तो कामयाब है। और जिससे अल्लाह का इतना बड़ा हुक्म, नमाज का हुक्म टूट जाए, ये कितने खसारे में है। इसलिए तो फरमाते हैं, जिसने नमाज को छोड़ा इसने दीन को गिराया, जिसने नमाज को कायम किया इसने दीन को कायम किया। हम अभी ये सऊदीया में हमारी तश्कील थी, तो जैसे आजकल हालात चल रहे हैं मस्जिद अक्सा का, सारी उम्मत परेशान है, दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह पाक। तो साथियों से अर्ज कर रहा था कि ठीक है हम वहाँ जा नहीं सकते, हालात है, बड़ी वो बहुत बातें हैं, लेकिन एक काम तो हम कर सकते हैं। मौलाना सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर की बात है, या वो थे या कोई और साथी थे, जुमात गई। उस जमाने में मस्जिद अक्सा में जुमातें जाती थी। जुमात गई तो एक यहूदी उनको मिला, उन्होंने कहा तुम लोगों ने बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ी, जुम्मा पढ़ा? कहा जुम्मा पढ़ा। कहा कितने लोग थे? कहा इतने लोग थे कि मस्जिद में समा नहीं सकते थे, रोड के ऊपर भी लोग खड़े थे। कहा फिर फजर भी पढ़ी? कहा फजर भी पढ़ी। कहा फजर में कितने थे? कहा बमुश्किल 1 या 2 सफ़े थी, बाकी कोई नहीं था। तो यहूदी मुस्कुराया, यहूदी ने कहा हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जब तक मुसलमानों की तादाद इतनी जितनी जुम्मा की नमाज में होती है, इतनी फजर में ना हो जाए, ये हम पे गालिब नहीं आ सकते। अब ये फजर की नमाज पे आना ये कोई मुश्किल है, या पे मेरे लिए कोई रुकावट है, कोई वीज़ा लगेगा मस्जिद के लिए, कोई और। आज हम चाहते हैं, वो कहते हैं हर कोई चाहता है कि बिल्ली के गले में घंटी होनी चाहिए, डालेगा कौन? डालने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज अमाल, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि 50% उम्मत नमाज पे आ जाए, नमाज पे अल्लाह पाक काफरों की तरक्की रोक देंगे, मुसलमानों का तनज़्ज़ुल रोक देंगे। 51% हो जाए, काफरों की तरक्की शुरू हो जाए, मुसलमानों की तरक्की शुरू हो जाए, काफरों का तनज़्ज़ुल शुरू हो जाए। और फरमाया करते थे, जो ये हदीस पाक का मफ़हूम है, जिसने नमाज को कायम किया इसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को छोड़ा इसने दीन को गिराया। तो फरमाते थे कि 10% उम्मती आज नमाज पढ़ रहे, तो फरमाते थे कि एक बिल्डिंग है, उसके बनाने पे 10 आदमी लगे हुए हैं, गिराने पे 90 आदमी लगे हुए, ये बिल्डिंग बनेगी क़यामत तक नहीं बन सकती। हमारा मसला एटम बम में नहीं अटका हुआ, हमारा मसला हाइड्रोजन बम में नहीं, हमारा मसला मैयत के साथ, अल्लाह की मैयत। फरमाया अल्लाह पाक की मैयत तो अमाल के साथ है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन किला फतह नहीं हो रहा था, तो फरमाते किला फतह नहीं हो रहा था, सहाबा कराम ने सोचा हमसे कौन सा अमल छूट गया, मिसवाक का अमल। एक साथी ने कहा यार आपके शब जुम्मा में तो मिसवाक और तस्बीह होती है, यहाँ पे कोई क्लाशनकोफ कोई वो। तो मैंने कहा क्लाशनकोफ से सहाबा के दौर में कोई चीज़ फतह हुई है, और मिसवाक से तो हम बता सकते किले फतेह हुए हैं।
اعمال کے ذریعے اللہ پاک کی معیت، اللہ کی معیت کے بغیر خدا کی قسم اللہ کی معیت کے بغیر ان مادیت کو باطل کے مادیت کے نقشوں کے سامنے ہم ایسے بے بس ہیں جیسے ابرہہ کے لشکر کے سامنے قریش مکہ بے بس تھے۔ ہاں اللہ کی معیت، اور اللہ کی معیت اعمال کے ساتھ ہے۔ اعمال میں بڑا عمل یہ نماز کے ذریعے۔ آج نماز امت نے چھوڑ دی، آج نماز نہ پڑھنے کو گناہ بھی نہیں کہتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نفل نماز کے اوپر جان دینے والے تھے۔ فضائل اعمال میں لکھا نہیں ہے 2 صحابی انصاری اور مہاجری کی، وہ جو پہرے کی ذمہ داری تھی، ایک تیر کا ہے، دوسرا کا ہے، تیسرا کا ہے، فرمانے لگے میری یہ ذمہ داری جو اللہ کے نبی نے میری ذمہ داری رکھی تھی، اگر یہ نہ ہوتی میری جان چلی جاتی، سورت کے ختم سے پہلے میں رکوع میں نہ جاتا۔ نفل نماز کے اوپر جان دینے والے تھے، ایسے نمازوں کو قائم کرنے والے تھے، اور دین کو سیکھ کے عمل کرنا، علماء سے پوچھنا، علماء سے دین کے مسائل پوچھنا۔ ہمیں پتہ کچھ نہیں، ہم نے فرض کر لیا مجھے سب کچھ آتا ہے، آتا کچھ نہیں ہے، میں نے فرض کر لیا مجھے سب کچھ آتا ہے، حالانکہ غسل کے فرائض کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اب علماء سے پوچھنا، علماء کے پاس جانا، علماء کی خدمت میں جانا، فرمایا یا عالم بنو یا طالب علم بنو، یا ان کے تعاون کرنے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، 5ویں نہ بنو اور نہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرماتے 5واں کون ہے؟ ان سے بغض کرنے والے نہ بنو اور نہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور جو علم کے لیے نکلتا ہے، فرمایا علماء کے لیے ہر خشک و تر چیز دعائیں مغفرت کرتی ہے، یہاں تک سمندروں میں مچھلیاں اور بلوں میں چونٹیاں اور موذی جانور سانپ اور بچھو تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں بلوں کی چونٹی کو اس کے دین سے کیا غرض، اس دین سے کیا غرض، اس علم سے اس کو کیا غرض، اور سمندر میں مچھلی کو اور سانپ اور بچھو کو فرماتے ہیں جب لوگوں کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، بے دینی آ جاتی ہے، اس بے دینی کی وجہ سے سمندر میں طوفان آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں مچھلیاں تباہ ہو جاتی ہیں، قحط سالی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلوں میں چونٹیاں بھوک سے مر جاتی ہے، اور بچھو اور سانپ مر جاتے ہیں۔ جب آدمی دین کے علم کے لیے نکلتا ہے، بلوں میں چونٹیاں خشک ہو جاتی ہے، سمندروں میں مچھلیاں خشک ہو جاتی ہے، کہ یہ جس چیز کو حاصل کرے گا پھر لوگوں کو بتائے گا، اس کی وجہ سے ہم سمندروں کے اندر سکون میں رہے گی، تو سمندر کی مچھلی کو تو اس علم کا فائدہ ہے، اور مجھے زمین کے اوپر اس عالم سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے علماء سے پوچھ کے زندگی گزارنا، علماء سے پوچھنا، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے علماء سے پوچھنا۔ بلال رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، کھجوریں لے کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال یہ کھجوریں کیسی؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے مفہوم واقعے کا یہ ہے، میرے پاس ادنا قسم کی کھجور تھی، مثال کے طور پہ وہ 2 کلو تھی، تو میں نے سوچا آپ کی خدمت اقدس میں لے کے آ رہا ہوں، یہ راستے میں یہ اچھی کھجور مجھے ملی، تو یہ مثال کے طور پر یعنی جتنی یہ وہ تھی اس کے آدھی یہ ہے، تو میں نے وہ دگنی دے کے اس سے یہ آدھی لے لی اس کے بدلے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال آپ نے عین سودی معاملہ کیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب مدیزیل والعالی فرماتے ہیں مفتیان کرام صرف تعبیر نہیں بتاتے، فرماتے یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی، تدبیر بھی بتائی۔ فرمایا مفتیان کرام تعبیر نہیں بتاتے، تدبیر بھی بتاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلال رضی اللہ عنہ کو سمجھایا اے بلال آپ اس طرح کرتے، اس کھجور کو بیچتے، ان پیسوں پہ یہ کھجور لیتے۔ تو پھر بعض لوگ کہتے اس میں کیا فرق ہوا، یہ تو ایک ہی چیز ہوئی،
मौलाना मक्की साहब अक्सर वो फरमा रहे थे, एक मरतबा का फ़र्क हो न देखो, अल्लाह के हुक्म को देखो। ऐसा ना हो कल ये ना कहना शुरू कर दो माँ और बीवी में क्या फ़र्क है। ये एक को अल्लाह ने हराम किया, इसको हलाल किया है। इसी तरह सूद हराम है, तिजारत हलाल है, लेकिन ये मुफ्तियान कराम बताएंगे। मुफ्तियान कराम से पूछना, आज तो मुफ्तियान कराम से या मिरास के मामले या तलाक के मसाइल पूछते, और दारुल इफ्ता में जाओ तो मिरास के मसले और तलाक के मसले कि मेरा फलाना मर गया, मेरा कितना हिस्सा बनता है, और बीवी को गुस्से में तलाक दे दी, तलाक हो गई कि नहीं, एक नशिश में 3 तलाकें हो गई कि नहीं, ये इसके अलावा मसला ही नहीं पूछते। जैसे सारे मसाइल, बाकी तो हमें दीन के सारे मसाइल पता है, और इन्हीं उलमा को अल्लाह पाक ने अहले ज़िक्र फरमाया, फसअलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछ लो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। अहले ज़िक्र से मुराद अहले इल्म है। फरमाते इल्म दिल के नूर का नाम है, इल्म कसरत रिवायात का नाम नहीं। जब दिल में ये नूर आ जाता है तो फिर फरमाते हराम और हलाल का पता चल जाता है, और दिल को नूरानी बनाने के लिए अल्लाह पाक का जिक्र है, ये जिलाउल कुलूब है, ये दिलों का रिगमाल है, दिलों का मांजन है, दिलों की सफाई है। फरमाया अल्लाह पाक के जिक्र से मोहब्बत ये अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है, और अल्लाह के जिक्र से बुग़्ज़ ये अल्लाह से बुग़्ज़ की अलामत। और फरमाते मसनून दुआएं जो है, मौका महल की दुआ, ये उस वक्त का बेहतरीन जिक्र है। अब अक्सर दुआएं हमने सीखी होती है, मौके पे भूल जाते हैं। वजह क्या है? दिल गाफिल है जब दिल। और इसी तरह और सूरज निकलने की दुआ, सुबह की दुआएं, शाम की दुआएं, ये सारी दुआएं सीख लें। और अल्लाह पाक का जिक्र करना, ये तीसरा कलमा दुरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम, ये तो कम अज़ कम का निसाब है। ये तो इब्तिदा में एक ताल्लुक बनाना, फिर आगे वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह के जिक्र की कोई हद नहीं। फरमाते हर अमल की हद है, अल्लाह के जिक्र की कोई हद नहीं। और अमल को बचाना है, फरमाते अमल करना आसान, अमल को बचाना मुश्किल। मिसाल देते, कहते जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी होते तो फुटबॉल को किक लगाना आसान है, लेकिन हर किक की कोई कीमत नहीं होती। उस किक की कीमत है जो गोल के जाल तक पहुंचाए। फरमाया उस अमल की कीमत है जिस अमल को महफूज करके अपने साथ लेके चला जाए। इस अमल की हिफाजत ये हुकूक की हिफाजत से है। फरमाते हैं कि अहमद अली लाहौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई ट्रेन में मैं जा रहा हूँ और एक ट्रेन एक स्टेशन पे रुक गई और मैं उतरा नीचे, फिर ट्रेन ने सीटी बजाई और मैं दौड़ने लगा, ट्रेन में सवार होने लगा, मेरा एक पाँव ट्रेन के पायदान पे हो, एक पाँव नीचे है, और कोई मेरे पास आ जाए कि अहमद कुरान की तफसीर बताओ मुझे, तो कहते मैं इतनी देर में पूरे कुरान की तफसीर बता सकता हूँ। किसी ने अर्ज किया हजरत इतनी थोड़ी सी देर में कुरान की तफसीर कैसे बताओगे? फरमाया कुरान का खुलासा 3 चीजें हैं कि अल्लाह पाक को राजी कर लो इबादत के साथ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लो इताअत के साथ, और अल्लाह के मखलूक को राजी कर लो खिदमत के साथ। कहते खिदमत बहुत बड़ा अमल है, खिदमत की वजह से कहते हैं अल्लाह पाक इंसान को मखदूम बना देता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अपने आप को नीचे समझना, जैसे अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में असर में भी बात आई। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु ये वो सहाबी है जिसने बदर में शिरकत की। बदरी सहाबा का क्या मुकाम है, बात लंबी हो जाएगी। उहद में अल्लाह के नबी के तलवार का